Dear students, and good morning. Welcome to Expert Secondary Zone. Today we are going to solve another topic. Questions are there on a new topic, interest on drawings. Interest on drawings is another topic where we have few things to remember. Few points are there, like when we have to charge the interest, at what rate we have to charge the interest, and for how much period we have to charge the interest. ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर ने ड्राइंग कब की है, नहीं गिवन होगा तो भी हम देख लेंगे। जैसे गिवन होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मींस जितने टाइम तक पार्टनर फर्म का पैसा यूज करेगा उतने टाइम तक का इंटरेस्ट पार्टनर को फर्म को पे करना होगा। The firm will charge the interest upon the drawings of the partners. Moreover, talking about the rate of interest question में given होगा कि किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। Furthermore, अब बात आती है कि कैसे चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने का तरीका अभी हम देखेंगे in this video. So let's start with question number 28, where two partners are there, Ram and Mohan. ये आपको question given है. Look at the question. This is from edition 2019. Ram and Mohan are partners, due for their personal use rupees 1,20,000 and rupees 80,000. राम ने विड्रॉ किए 1,80,000 और मोहन ने विड्रॉ किए rupees 80,000 from the business. Now, interest is chargeable at rate of 6% per annum. Here, talking about the interest. ये interest की बात चल रही है। 6% per annum से interest charge किया गया on the drawings. All right. What is the amount of interest chargeable from each partner? तो हर partner से कितना interest charge किया जाएगा? Amount chargeable from each partner. किस partner से कितना interest charge किया जाएगा? This is the question. In this question, can be seen that the rate of interest is given, amount of drawings is given, but the most important thing is missing, the date of drawings. Date of drawings is not there. इस केस में अब क्या करेंगे? Now what to do? So let's move on. Let's start with the solution. यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे. We will put the heading into some drawings. We had to calculate the interest upon the drawings of Ram and Mohan. So put the heading interest on drawings. Now, the name of the partners for Ram, राम का अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? 1,20,000 rupees. This is the amount of drawings of Ram. Again, look at the question. See, Ram and Mohan are partners. Drawings है 120 and 80,000 respectively. और rate of interest है 6% per annum. All right. राम की ड्राइंग्स है 1,20,000 की. रेट गिवन है 6%, but डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है. जब डेट गिवन नहीं होगी तो अब हमें नहीं मालूम कि इन्होंने पैसा फर्म से कब विड्रॉ किया. फॉर एग्जाम्पल, साल शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को, एंड हो जाता है 31 मार्च को. अगर साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2018 में और एंड हुआ 31 मार्च 2019 में, अब ड्यूरिंग दिस ईयर इस पार्टनर ने पैसा फर्म से कब विड्रॉ किया? हो सकता है पहले अप्रैल को विड्रॉ कर लिया 2018 में, हो सकता है 1 सितंबर 2018 विड्रॉ किया हो सकता है ईयर के एंड में 31 मार्च 2019 में विड्रॉ किया हो. No date is given. So in this particular type of situation, we will charge the interest from the partners for an average period of 6 months. यहाँ पर हम 6 months का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. मीन्स जब भी डेट गिवन नहीं होगी ड्राइंग्स की तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. साल में कितने महीने होते हैं? 12. So we have written it here as denominator 12. Number of months in a year
और ये नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच वी आर चार्जिंग द इंटरेस्ट। न्यूमरेटर में आएगा कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन केस ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल चार्ज द इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. Now simplify it. 2 zeros cancel by 2 zeros. 6 1s are 6, 6 2s are 12. Now here we have got 2, so 2 1s are 2 and 2 3s are 6. अब ये कितना बचा? 1200. 1200 into 3 is equals to 3600. So amount of interest chargeable from Ram upon his drawings is rupees 3600. Move on to another partner, Mohan. Mohan had withdrawn rupees 80,000 from the firm, so we will charge the interest upon his drawings at rate of 6% per annum for a period of 6 months again, since no information is given about the date of drawings. Again 2 zeros cancel by 2 zeros. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6. Here what we have 800, 800 3s are 2400. तो इनका इंटरेस्ट आ जाएगा 2400 रुपीज रिस्पेक्टिवली. एनी प्रॉब्लम? जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होगी तो इंटरेस्ट 6 महीने का चार्ज किया जाएगा. Let's move on to question number 29. Here it says Brij and Mohan are partners in a firm. Brij and Mohan are partners in a firm. They withdrew rupees 48,000 and 36,000 respectively. Brij ने विड्रॉ किया 48,000 और मोहन ने विड्रॉ किए 36,000 during the year evenly. Evenly means equally. Evenly means equally. We will write it here. In the middle of every month or each month. कब withdraw कर रहे हैं? Middle of each month. According to the partnership agreement, interest on drawings is to be charged at rate of 10% per annum. Calculate the interest on drawings of the partners using the appropriate formula. Rate क्या है? 10%. इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना है. विड्रॉ कर रहे हैं. They withdrew rupees 48,000 and 36,000 rupees during the year evenly in the middle of every month. यहां पर इनकी टोटल ड्राइंग दे रखी है. They withdrew rupees 48,000 and 36,000 respectively during the year. It is the total amount of drawings. वैसे इस तरह के क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होता है. जब ये लिखा होता है कि इवनली इन द मिडिल या इन द बिगिनिंग या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा होता है, जब भी ये सिचुएशन होती है तो यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन रहती है किस तरह की? ये इंफॉर्मेशन रहती है कि महीने के शुरू में विड्रॉ किया या महीने के बीच में विड्रॉ किया या महीने के एंड में विड्रॉ किया, और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रखा होता है कि हर महीने 500 रुपए विड्रॉ किए, हर महीने 800 रुपए विड्रॉ किए. अमाउंट भी सेम दे रखा होता है ऑलमोस्ट, और इवनली लिखा है मींस इक्वल अमाउंट हमेशा विड्रॉ किया. सिचुएशन ये रहती है. बट दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट. यहाँ पर जो है आपको टोटल ड्राइंग्स दे रखी है. जब आपको टोटल ड्राइंग्स दे रखी है, अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे ब्रिज एंड मोहन की. सो इट विल वर्क लाइक दिस. ब्रिज का अमाउंट है 48,000. 48,000 इन्होंने विड्रॉ किया. रेट दे रखा है इस पर 10% पर एनम, जो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है जिस रेट से. मंथ्स कितने लगाएंगे? अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पैसा विड्रॉ किया तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में रेट क्या होगा, सॉरी मंथ्स कितने होंगे, हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा, पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ
6.5 months, 6.5 months. On the other hand, अगर कोई पार्टनर मिडिल ऑफ ईच मंथ में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो मिडिल ऑफ ईच मंथ में हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. ये वाला केस जो है जो हम करने जा रहे हैं ये 6 months वाला केस है. यहाँ पर मिडिल ऑफ ईच मंथ में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो यहाँ पर 6 months का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. लाइकवाइज थर्ड केस होता है एंड ऑफ ईच मंथ. अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 5.5 months. 5.5 months. महीने के शुरू में 6.5 महीने का, महीने के बीच में 6 महीने का, महीने के एंड में 5.5 महीने का. यहाँ सिचुएशन क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है? नो, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ गिवन. इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ. मिडिल में क्या होता है? 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो 6/12 लिख देंगे. इक्वल टू 00 कैंसिल बाय डबल जीरोस. 6 1 6 and 6 2 12. 2 1 2 again. 2 2 4, 2 4 8, 00. तो कितना अमाउंट हुआ? 2400 रुपीज. इस क्वेश्चन में आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी है. अदरवाइज आपको ये दे रखा होगा, ध्यान रखना है कि he withdrew ₹400 in the beginning of each month. ऐसे दे रखा होगा. यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने मूव किया. ब्रिज का मोहन है जो 36,000 विड्रॉ किया तो मोहन पे आ जाएंगे. मोहन विड्रू ₹36,000 in total, which he withdrew rupees 36,000 which he withdrew in the middle of each month. So the rate will be the same as given question 10% and months also will be the same 6/12 because he withdrew in the middle of each month. Now simplify. 6 1 6, 6 2 12, 00 cancel by 00. 2 1 2, 18 to the 36 and 2 zeros and the answer came to be rupees 1800 as interest in drawings of this partner. Clear? Moving ahead, question number 30. A and B are partners sharing profits equally. दो पार्टनर है यहाँ पर. कौन है? A and B. कैसे विड्रॉ कर रहे हैं? इक्वली. इन्होंने इक्वली प्रॉफिट शेयर करना है आपस में. A drew regularly. A drew regularly. ये विड्रॉ करता है रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगिनिंग में हर महीने के शुरू में पैसा विड्रॉ करता है. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया यहाँ पर. बट फॉर 6 months ओनली. फॉर 6 months ओनली एंडेड 30 September 2019. ये विड्रॉ तो करता है, हर महीने के शुरू में विड्रॉ करता है, लेकिन किन्हीं 6 महीनों विड्रॉ किया. अब कौन से 6 महीने? 6 महीने खत्म हुए 30 सितंबर को. तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल. यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने तक लगातार पैसा विड्रॉ किया इस व्यक्ति ने, ए ने. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. अब ये यहाँ पर फ्रेज दे रखा है 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करिए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. तो क्वेश्चन में गिवन है. गिवन नहीं होता तब भी हम इसको कंसिडर करते हैं. जब पार्टनर पैसा विड्रॉ 6 महीने कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट भी 6 महीने का चार्ज करेंगे. किसी पे जुल्म थोड़ा ना करेंगे. हमारे यहाँ फॉर्मूलाज बहुत ही तरीके से ड्राइव किए गए. एज यू नो वेरी वेल, अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल. अपार्ट फ्रॉम आर्ट इज साइंस ऑल्सो. तो यहाँ पर हर चीज जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है. उसे हम आगे देखेंगे कैसे प्रूव किया जाता है इन फॉर्मूलाज को. अब देखिए कैसे सॉल्व करना है. अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा, मैंने पीछे भी लिखा था इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अब दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग है. अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है
in the beginning of each month लेकिन यहाँ पर खास बात दी है, बट फॉर 6 months ओनली, किन्हीं 6 महीने के लिए पैसा विड्रॉ करता है, लगातार 6 महीने, जनवरी से जून भी हो सकते हैं, मार्च से आपके अगस्त भी हो सकते हैं, अप्रैल से सितंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी 6 महीने हो सकते हैं. In the beginning of each month, but for 6 months only, then IOD will be charged for a period of, interest and drawings will be charged for a period of, will be charged for a period of 3.5 months. Three and a half months. ऐसे ही अगर कोई पार्टनर इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ बट फॉर 6 months ओनली, पहले लिखवाया था इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ होगा तो हम 6 महीने का चार्ज करेंगे, बट यहाँ पर इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, बट फॉर 6 months ओनली, कंडीशन 6 महीने की, 6 महीने पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, तो यहाँ पर 3 months का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. वैसे 6 महीने होता है नॉर्मली, जब पार्टनर पूरे साल पैसा विड्रॉ करता है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. यहाँ पर विड्रॉ तो किया, हर महीने के बीच में किया, लेकिन किन्हीं 6 महीने पैसा विड्रॉ किया लगातार, तो हम यहाँ पर 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ पैसा विड्रॉ करता है तो हम 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है फॉर 6 months ओनली, किन्हीं 6 महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया तो हम 2.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 months. अब इस केस में क्या है, मिस्टर ए ने पैसा विड्रॉ किया, ए विड्रू हाउ मच, ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. अब देखिए 4,000 विड्रॉ की है, टोटल ड्रॉइंग गिवन नहीं है, 4,000 गिवन है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लिखा हुआ है विड्रू 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो 6 महीने तक विड्रॉ के आगे लिखा हुआ फॉर 6 months, तो 4 6 24,000. Total amount withdrawn by Mr. A from the firm is rupees 24,000. Now we will pay the interest upon this amount 24,000. Rate is given 5% per annum. 5% rate is given, and how many months will be applied? In the beginning of every month है, beginning of every month में कितना चार्ज किया जाएगा, 3.5 months का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. इट इम्प्लाइज दैट, इसको हम आगे सॉल्व आउट करें, ये हो जाएगा 24,000 इंटू 5/100 इंटू, इसको मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या आएगा, 3 to 6 + 1 7, ये आ जाएगा 7/2, और नीचे डिनोमिनेटर में 12 पहले ही है तो ये हो जाएगा 2 × 12 = 2. अब ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 12 2 कितना होता है 24, ये कितना लिखा है 24, ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा कितना 1. अब ये 1 0 बचा, फिर 10 हो गया, ठीक है, 1 0 है यहाँ पर जो कटा नहीं है अभी तक, तो ये 10 हो गया. अब 7 5 35, 35 × 10 350. This is the answer. Any problem? Move on to the next question. Next question is given, question number 31. I hope you can solve it by yourself. However, I am there, I will work out for you this time. लेकिन आगे आप ट्राई करिए, दूसरी बुक से ट्राई करिए, दूसरे एडिशन से ट्राई करिए. Here what is given, one of the partners in a firm, कोई पार्टनर है एक फर्म में, has withdrawn with 9,000, उसने 9,000 विड्रॉ किए at the end of each month, हर महीने के एंड में विड्रॉ किए. 9,000 विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है. ऑलराइट, अब मंथ नहीं है, यहाँ पर क्वार्टर है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. क्वार्टर कितने होते हैं साल में, देयर आर 4 quarters इन अ ईयर. क्वार्टर का मतलब होता है 1/4. क्वार्टर का मतलब होता है quarter is equals to 1/4. लाइक फॉर एग्जाम्पल राइस प्लेट होती हैं,
डिनर सेट जब आपका आता है उसमें प्लेट्स होती हैं, राइस प्लेट होती हैं, एक होती है फुल प्लेट, एक होती है हाफ प्लेट, और एक होती है क्वार्टर प्लेट। फुल का आधा हाफ होता है, और उसका भी आधा जो होता है वो क्वार्टर होता है। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 1/4। तो हमारे ईयर का क्वार्टर कितना हो जाएगा? एवन ऑफ यू? अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी प्लीज। ईयर का क्वार्टर कितना हो जाएगा, यानी ईयर का 1/4 कितना हो जाएगा? दे आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। अब ईयर का 1/4 निकालेंगे। 4 1 द 4, 4 3 द 12, 3 into 1 is equals to 3, यानी 3 मंथ्स हुए। साल का क्वार्टर कितना होगा? 3 महीने। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल का क्वार्टर कितना हुआ? 3 महीने। एक साल का क्वार्टर 3 महीने। दैट्स इट। आगे देखिए, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल विड्रॉ किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्रॉइंग एट रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% रेट दे रखा है। अमाउंट कितना है? 9000। हर क्वार्टर में विड्रॉ किया, 6% रेट है। ले लेंगे यहाँ पर 9000 विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉन इज ₹9000। हर क्वार्टर में विड्रॉ किया। क्वार्टर कितने हैं साल में? 4। तो 9 4 36,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। अब इस 36,000 में हमने फॉर्मूला फिट करना है। 36,000, how much rate is given? 6%. Yeah, 6% is given. So 6 by 100. Percent means out of 100, इसलिए 100 लिखते हैं काय में? डिनोमिनेटर में। और क्या दे रखा है? इन्होंने विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर की बात करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसको भी नीचे लिख देता हूं मैं आपको एज नोट्स। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर क्वेश्चन में गिवन है, तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इस केस में 7.5 मंथ्स का। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 7.5 मंथ्स का। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में चार्ज करेंगे इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कितना? फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर के केस में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना? 4.5 मंथ्स का। 7.5, 6 and 4.5। अब यहां पर क्या केस है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर गिवन है क्वेश्चन नंबर 31। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सी हियर इट इज गिवन, ही हैज विथड्रॉन विद 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड के केस में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप? 4.5 मंथ्स। लिख दीजिए 4 होल 1/2 अपॉन 12 मंथ्स। इट इंप्लाइज दैट, आगे ले आएंगे इसे, 36,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 रेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। 4 to the 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 2, और ऑलरेडी क्या है यहाँ पर? 12। तो ये हो जाएगा 2 into 12 इज इक्वल्स टू 00, कैंसिल बाय डबल जीरोस। 6 1 the 6, 6 2 the 12, कट गया। अभी बचा 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 the 2, 18 2 the 36, एक 0 है, 0 लगा दिया। अब ये फिर 2 बचा यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 the 2, यहाँ पर 2 9 the 18, 0 पुट कर दिया। अभी इधर 90 बचा, 90, और ऊपर क्या बचा? 9, 9 9 the 81 होते हैं, 9 9 the 81, और एक 0 90 में है, तो वो 0 पुट कर दिया। सो हाउ मच विल बी द आंसर? 810, 810, 810, दिस इज द आंसर। Move on to next question. Question number 33. Calculate interest on drawings. Calculate interest on drawings of Ashok. अशोक की बात कर रहे हैं।
at rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2019 in each of the following alternative cases. If he withdrew 7500 in the beginning of each quarter, यदि दे रखा है beginning of each quarter, if he withdrew at the end of each quarter, if he withdrew in the middle of each quarter. तीन केस दे रखे हैं, beginning का भी है, end का भी है, middle का भी है. कौन से केसेस हैं? क्वार्टर. इन ईच केस क्वार्टर की बात चल रही है, क्वार्टर का बिगिनिंग, क्वार्टर का एंड, क्वार्टर का मिडिल. आपको मालूम है कि क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5 महीने का होता है, क्वार्टर के एंड में 4.5 महीने का होता है, और क्वार्टर के मिडिल में 6 महीने का इंटरेस्ट होता है. तो यहाँ पर इसके आगे पुट कर देते हैं केस 1 के आगे, यहाँ पर 7.5 मंथ का बिगिनिंग में, एंड में 4.5 मंथ्स का, और मिडिल में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. ऑलराइट, अपने आप कर लेंगे. चलिए करते हैं. अशोक ने विड्रॉ किया, अमाउंट कितना है? 7500 रुपीज. पहले तो अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए. 7500 रुपीज अगर एक बार विड्रॉ किए और इन्होंने ऐसे 4 बार विड्रॉ किया लगातार, तो टोटल अमाउंट विड्रॉन है 30,000. तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. नाउ टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स ही आई 30,000 रुपीज. अब इनके 30,000 रुपीज पे फर्स्ट केस में यहां पर आ जाएगा केस 1. रेट कितना गिवन है? 10%. या अशोक के बाद लिखा हुआ है एट रेट ऑफ 10%. 10/100 हो जाएगा 10% पर एनम इनटू, और क्या करना है? मंथ्स लगाने. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 महीने लगाए जाते हैं. 7 होल 1/2, 7 होल 1/2 upon 12. It implies that 30,000 into 10/100 into 7 to a 14 plus 115 by 2 into 12 is equals to, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक इस जीरो से ऊपर वाले से और एक इस ऊपर वाले जीरो से. नाउ मूविंग ऑन फर्दर. 3 4 द 12, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3 और 3 जीरो है एज इट इज आ जाएंगे. 4 से डिवाइड करेंगे 1000 को, 4 1 द 4, ये आ जाएगा आपका 250. 4 2 द 8, 2 0 20, 4 5 द 20 और 0. 2 1 द 2, 2 से डिवाइड करेंगे 125, इतना बचा. अब 15 का टेबल पढ़ेंगे. 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 टू द 30 और 7 का 7 कैरी 3, 15 वन 15 और 3 18. So the amount of interest will be 1875 rupees in first case. Case 1. Now case 2. केस 2 में अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है 30,000 रुपीज. रेट कितना है? वो भी सेम है 10%. एंड ऑफ क्वार्टर में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 4 होल 1/2 upon 12, 4.5 महीने का. 4 1/2 by 12 months. It implies that 30,000 into 10/100 into 4 to the 8 plus 1 9, 9/12 is equals to 30,000. सॉरी, पहले इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं. ये जीरो इस जीरो से कैंसिल और ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कैंसिल. नाउ 3 4 द 12, 3 से कैंसिल आउट किया 1000 रहा. ये 4 से कैंसिल किया 4 1 द 4, तो ये आपका आया 1000 को डिवाइड कर दिया 4 से, बचा 250. अब 250 into 9 is equals to 2250. राइट. 900, 9 5 45 5 carry 4, 9 0 18 4 22. Now case 3rd. Move on to case 3. If you withdraw the same amount 7500 in the middle of each quarter,
यू नो वेरी वेल, क्वार्टर के मिडिल में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, क्वार्टर के मिडिल में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, अमाउंट सेम है 30,000, रेट विल बी अगेन सेम 10%, बस आपको मंथ्स चेंज करने, 6/12 कर देंगे यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 00 कैंसिल बाय डबल जीरोस, 2 1 2 और ये 1500 to the 3000, so the amount will be 1500 rupees. This is the solution of this question. Next question is question number 34. This is the question before you. Whatever is given, I am reading it out. Please understand. Try to understand. It is a very important question. New question. जो क्वेश्चन अब तक किए हैं उससे अलग है. See, Kanika and Gautam are partners doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profits in the ratio of 2:1 with capitals of 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdrew. Kanika ने पैसा निकाला, ये important चीज है. The following amounts during the year to pay the hostel expenses of her son. Kanika withdraw कर रही है 1 अप्रैल में, 1 जून में, 1 नवंबर में और 1 दिसंबर में. क्या ये ईच क्वार्टर माना जाएगा? ईच क्वार्टर का मतलब क्या होता है? अगर अप्रैल में अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल में विड्रॉ करें, फिर 3 महीने गुजरने के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने गुजर गए तो मई में विड्रॉ करें, फिर मई जून जुलाई 3 महीने गुजर गए तो सॉरी पहली बार अप्रैल में विड्रॉ करें, अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, जुलाई में विड्रॉ करें, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने गुजर गए, फिर अक्टूबर विड्रॉ करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और इन्होंने नवंबर में विड्रॉ कर लिया और दिसंबर में विड्रॉ कर लिया. क्वार्टर क्या होते हैं? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है. पहला होता है अप्रैल मई जून, दूसरा होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा होता है जनवरी फरवरी मार्च. मींस अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ये 4 क्वार्टर्स होते हैं. इन्होंने क्वार्टर्स की कैद नहीं रखी, यानी हम क्वार्टर वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट नहीं कर सकते. ओके, लेट्स गो अहेड. गौतम विड्रॉ, आगे गौतम ने विड्रॉ किया अमाउंट ₹15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल. गौतम विड्रॉ ₹15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे द रेंट फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली. यहाँ पर क्या है? अप्रैल एक क्वार्टर स्टार्ट हुआ, दूसरा चेक करते हैं जुलाई में स्टार्ट होता है, ये भी क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर स्टार्ट होता है अक्टूबर में, ये भी क्वार्टर है, ठीक है, और चौथा क्वार्टर स्टार्ट होता है जनवरी में. सो ही हैज फॉलोड द सिस्टम. इन्होंने हर क्वार्टर में पैसा विड्रॉ किया. और कब विड्रॉ किया? ऑन द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे मींस बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. यहाँ पर क्या हो गया? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. कंडीशन इज बीइंग फॉलोड. इन्होंने कंडीशन फॉलो करी, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ किया. तो यहाँ पर हम क्वार्टर वाला केस अप्लाई कर देंगे, 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. He also paid rupees 20,000 रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप. इन्होंने अपनी पॉकेट से पार्टनरशिप फर्म का रेंट पे करा, which was in a nearby shopping complex. Calculate interest drawings at rate of 6% per annum. अब यहाँ पर क्या खास बात है इस क्वेश्चन में? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्टनर का जो है कनिष्क है और व्हाटएवर, उनका पार्ट डिफरेंट है. कनिका है, कनिका का पार्ट डिफरेंट है. कनिका ने पैसा विड्रॉ किया. पहली बात, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज डिफरेंट. अगेन चेक इट. अप्रैल में पहली बार पैसा विड्रॉ किया, अप्रैल से 3 महीने गुजरते हैं, अप्रैल में जून गुजर जाना चाहिए, पर इन्होंने सिर्फ अप्रैल में 2 महीने पास हुए, जून में पैसा विड्रॉ कर लिया. फिर जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने बाद नवंबर में फिर विड्रॉ किया और फिर एक ही महीने बाद अगले महीने दिसंबर में विड्रॉ कर लिया. पहली चीज, डेट्स आर डिफरेंट. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अमाउंट्स आल्सो डिफर्स. 10,000, 9,000, 14,000, 5,000. तो ये अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन है, अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन
by the partner on different dates. डेट्स भी डिफरेंट है, डेट भी डिफरेंट है और अमाउंट भी अनइक्वल है। अभी तक हम इक्वल अमाउंट की बात कर रहे थे, हर पार्टनर पैसा इक्वली विथड्रॉ कर रहा था, जब भी विथड्रॉ कर रहा था इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच क्वार्टर व्हाटएवर, तो इक्वल अमाउंट विथड्रॉ कर रहा था, इवन अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट अमाउंट विथड्रॉ किए गए हैं इन डिफरेंट डेट्स। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई आइदर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। या तो सिंपल मेथड अप्लाई करिए या फिर प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करिए। एज शोन बाय द नेम सिंपल मेथड, ये ज्यादा सिंपल होना चाहिए, ऑब्वियस है, नाम ही दिया सिंपल। लेकिन जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। सिंपल मेथड नाम सिंपल दे रखा है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा है, और कैलकुलेशन अगर आप ज्यादा करेंगे तो चांसेस ऑफ मिस्टेक भी ज्यादा होंगे, चांसेस ऑफ ऑकरिंग मिस्टेक्स विल बी मोर। इसलिए कैलकुलेशन एक बार करिए, कैलकुलेशन सिंपली एक बार करिए। ट्राई टू अवॉइड मैनी कैलकुलेशन, इंस्टेड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन वन स्टेप ओनली। ये टेबल है, प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड, दोनों मेथड में टेबल बनाई जाती है, ये तो सेम है, तो ये पार्ट तो करना ही पड़ेगा। अब हम आंसर जब कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड में इस टेबल को फाइनलाइज करने के बाद उसके बाद एक लाइन में कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है। और सिंपल मेथड में इसी टेबल के अंदर हर स्टेप पे, ये लास्ट वाला कॉलम जो है प्रोडक्ट कॉलम, इसमें हर स्टेप पे कैलकुलेशन करनी होती है, फाइनली इंटरेस्ट निकलता रहता है हर स्टेप पर, और फाइनली टोटल करके आंसर यानी टोटल इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया जाता है। हम सिंपल मेथड को अप्लाई नहीं करते, प्रोडक्ट मेथड इज मोर आइडियल। जब प्रोडक्ट मेथड इज मोर आइडियल है तो इसी को लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, जो भी डेट दे रखी है डेट विथड्रॉ कर लेंगे, अप्रैल जून नवंबर दिसंबर, अप्रैल जून नवंबर एंड दिसंबर, ये डेट्स गिवन है, नोट डाउन कर लिया डेट कॉलम में। सबसे पहले डेट इंपॉर्टेंट है, डेट को आपको ध्यान रखना है और एज इट इज जॉट डाउन कर देना है, राइट डाउन इन योर नोटबुक व्हाटएवर डेट इज गिवन। 1 अप्रैल ST लगा लीजिए, चलिए सुंदर लगेगा। 1 जून, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर। इस टेबल को बनाने का आसान तरीका आपको याद कैसे रहेगी, टेबल में कब कहाँ किस कॉलम की हेडिंग क्या डालनी है। सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जो पार्टनर पैसा विथड्रॉ कर रहा है वो कब विथड्रॉ कर रहा है, डेट। तो सबसे पहले कॉलम में अगर आपको याद ना रहे तो आप डेट डाल देंगे, सबसे पहले डेट से मूव करिए। अब ये पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल में क्या विथड्रॉ किया, कितना विथड्रॉ किया, मालूम होना चाहिए। तो मीन सेटिंग सेकंड हेडिंग अमाउंट किया जाएगी, सेकंड हेडिंग अमाउंट की। यहाँ 10,000 विथड्रॉ किया था या 9,000 विथड्रॉ किया था, फॉलोड बाय 14,000 एंड 5,000। पहले डेट लिखेंगे फिर अमाउंट लिखेंगे, क्लियर। देखिए 10, 9, 14, 5, 10, 9, 14, 5 करेक्ट है। सबसे पहले देखा कि किस डेट में विथड्रॉ किया, डेट से याद आया कि कितना अमाउंट विथड्रॉ किया, मंथ अमाउंट लिख दिया। अब हम मंथ कैलकुलेट करेंगे, ये पैसा इस व्यक्ति ने कितने महीने तक इस्तेमाल किया। आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके अब तक आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, मंथ अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर 4.5 महीने, कहीं पर 6 महीने, कहीं पर 3 महीने, कहीं पर 9 महीने। तो पता होना चाहिए कितने महीने के लिए पार्टनर ने पैसा विथड्रॉ किया है। जितने महीने पैसा पार्टनर इस्तेमाल करेगा उतने महीने का पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को। इसलिए पहली चीज डेट लिखिए, दूसरी चीज अमाउंट लिखिए कितना विथड्रॉ किया, तीसरी बात मंथ लिखिए कितने महीने तक इस पैसे को इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल को ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, पूरे 12 महीने होते हैं। मीन्स उन्होंने 12 महीने इस पैसे को इस्तेमाल किया होगा। अब पैसा इन्होंने विथड्रॉ किया 1 जून को, 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 10 महीने होते हैं। कैसे, गिन लीजिए। या फिर बैक में जाइए, 1 जून है तो कितने महीने गुजर चुके, मई गुजर चुका, अप्रैल गुजर चुका, अप्रैल एंड मई 2 महीने गुजर चुके। साले 12 महीने होते हैं, 12 में 2 माइनस कर दिए, बचे कितने, 10 महीने। ये ऐसे गिनती कर लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आगे 10 महीने। अब विथड्रॉ किया 1 नवंबर को, 1 नवंबर से 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर तक कितने
महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने होते हैं। फिर 1 दिसंबर को विड्रॉ किया, दिसंबर से मार्च तक 4 महीने होते हैं। ये मंथ्स आ गए। पहली चीज डेट लिखेंगे, दो चीज पैसा लिखेंगे, कितना पैसा विड्रॉ किया, तीसरी चीज लिखेंगे कितने महीने तक इस पैसे को इस्तेमाल किया, मंथ्स, कितने महीने तक इस पैसे को इस्तेमाल किया। फोर्थ कॉलम में प्रोडक्ट निकालेंगे, मींस प्रोडक्ट क्या होता है, द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, यू नो वेरी वेल, द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वट एवर द आंसर विल कम इट विल बी रिकॉर्डेड इन फोर्थ कॉलम। जैसे यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर इंटू 12 हो गया, 10,000 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज। करेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आगे यहाँ पर 9,000 है, 10 से मल्टीप्लाई किया, 9 10 जा 90,000। यहाँ पर 14,000 है, इंटू 5 इज इक्वल्स टू 70,000। Here we have 5,000 into 4 is equals to 20,000. 5 4s are 20. All right. ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी टोटलिंग करेंगे, कितना अमाउंट टोटल विड्रॉ किया। टोटलिंग कीजिए, 1 लाख, 120, 210, 280, 3 लाख, 3 लाख रुपए विड्रॉ किए। कैसे निकाला हमने, कैसे कैलकुलेट किया, उनकी टोटलिंग की, टोटल अमाउंट आया 3 लाख रुपीस। आपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, 4 जीरो के 4 जीरो आ गए, 9 2 11, 11 से 18, 20 2 2 3 लाख आ गया। अब मैंने कहा था एक स्टेप पे आंसर आ जाएगा एक लाइन में, कैसे आएगा, लेट्स सी। अमाउंट कितना विड्रॉन है, 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस विड्रॉन है, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6/100 लिख देंगे। अब सवाल आता है कितने महीने के इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यस, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्वार्टर में होता है 7.5 महीने, 6 महीने, 4.5 महीने। मंथ्स में होता है 6.5 महीने, 6 महीने, 5.5 महीने। और मंथ्स में अगर 6 महीने तक पैसा विड्रॉ किया तो होता है 3.5 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने। अगर मिड ऑफ द ईयर में विड्रॉ किया तो होते हैं 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने। इस तरीके से मंथ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितने महीने अप्लाई करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन, कितने महीने अप्लाई करेंगे। यहां पर हम सिंपली इन अ लेमन लैंग्वेज बता रहा हूं जो आपको याद रहे, 1 मंथ अप्लाई करेंगे और आउट ऑफ 12 मंथ्स नीचे 12 लिख देंगे। ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट सो। देखिए प्रीवियस स्लाइड पे जाइए, हमने यहाँ पर हर चीज को मंथ से मल्टीप्लाई किया, 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया, 10 से किया, 5 से किया, 4 से किया, यानी ये अमाउंट जो इतने बड़े बड़े हो गए, 10,000 का 120 हो गया, 9,000 का 90 हो गया, 14,000 का 70 हो गया और 5,000 का 20,000 हो गया। इतने बड़े बड़े अमाउंट हो गए क्योंकि इनके अंदर मंथ्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मंथ्स कहने का इंक्लूडेड है, मंथ से आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम ऑन एन एवरेज लेने के लिए मंथ से डिवाइड करना चाहते हैं। हम इसका 3 लाख का एवरेज निकालना चाहते हैं, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, हम मंथ से डिवाइड करना चाहते हैं। तो हमने साल में जितने महीने होते हैं उसको डिनोमिनेटर में रख दिया। There are 12 months in a year, we have put it here, we have recorded it here as denominator, हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। अब हमें मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना, मंथ से मल्टीप्लाई पहले कर चुके। ये साइन क्या लगा हुआ है बीच में, यहाँ आप देख रहे हैं, मैं रेड मार्क से इसे दिखाता हूं आपको, ये मल्टीप्लाई का मार्क लगा हुआ है। हम यहाँ पे कोई भी फिगर लिखेंगे, ये जो ऊपर लिखी है न्यूमरेटर, या कोई भी फिगर लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो ये अमाउंट जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमने यहाँ 6 महीने लिखे तो अगेन 6 मंथ से मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज क्या है, ये मंथ्स है, 4 लिखा 4 महीने से मल्टीप्लाई हो गया। हम तो मंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने की बात कहां से आ गई, हम तो मंथ से डिवाइड कर रहे हैं ना, हमें तो एवरेज निकालना है, तो मंथ से डिवाइड कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें यह क्या लिखना चाहिए, 0/12। लेकिन समस्या 0/12 लिखेंगे तो 0 तो ऐसी चीज है जिससे मल्टीप्लाई करने में आंसर इन्फिनिट हो जाएगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे क्या लिखें। 2 लिखेंगे तो जो आंसर आना होगा वो डबल हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो जो आंसर आना होगा ट्रिपल हो जाएगा। हर जगह प्रॉब्लम है। एक 1 ऐसी डिजिट है जिससे किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दें अगर,
तो जो आंसर है वो एज इट इज रहेगा। अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/12 होगा, 6 यानी फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 6 है तो अब भी 6 ही रही, कोई चेंज नहीं आया। राइट, करेक्ट। तो क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि आप 1 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज योर इंटेंशन इज नॉट टू अप्लाई मंथ, रादर यू वांट टू मेक इट न्यूट्रल। हमें इस चीज को न्यूट्रल रखना है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, किसी भी फिगर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम फिगर आ जाती है, तो हमें सेम फिगर ही लानी है, हमें चेंज करना ही नहीं है। अभी 00 कैंसिल बाय डबल जीरोस, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऑलराइट, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 एंड 00 1500। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 1500 रुपीज। 1500 इंटू 1 इज इक्वल टू 1500। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 1500 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1500। गॉट इट? अब दूसरे पार्टनर जो थे गौरव जी, उनका इंटरेस्ट, गौतम जी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। गौतम जी ने he withdrew 15,000 in the beginning of each quarter. Beginning of each quarter. 15,000 in the beginning of each quarter. All right. क्वार्टर कितने होते हैं साल में? अगेन 4, तो आंसर कितना आया? 60,000। मींस टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज रुपीज 60,000। अब 60,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेट क्या गिवन है? 6% पर एनम। रेट हमने पुट कर दिया। क्वार्टर के बिगिनिंग में कितना इंटरेस्ट लगता है? 7.5 महीने का। कितने पीरियड का? 7.5 महीने का। 7 होल 1/2 मंथ्स इन 12, 7 होल by 12, 7/2 upon 12. It implies that 60,000 into 5 upon, 6 upon 100 into 7 to the 14 plus 1 15 upon 2 into 12. ये डिनोमिनेटर जो ऊपर था ये 2 नीचे आ गया और 12 ऑलरेडी नीचे ही था। अब आप सॉल्व आउट करें इसे। सी, लुक हियर, 6 1 6, 6 2 12, 00 कैंसिल बाय 00, 2 1 2, ये आपका जो है 600 है, ये हो जाएगा 300। इधर आपका कटा 2, ये वाला 2 1 2। अब ये 2 है, 2 1 2, अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 150 आ जाएगा। 150 into 15, 50 50 225 होते हैं। 225 और एक 0 है, 0 पुट कर देंगे, आंसर आ गया 2250। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक टॉपिक इज ओवर, सो दिस क्लास इज ओवर हियर ओनली। इससे पहले मैं आपको बिफोर वाइंडिंग अप द क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू, जो हमने मंथ्स कैलकुलेट किए, अब इसका हम जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, हर चीज का जस्टिफिकेशन है। अकाउंटिंग इज ए साइंस आल्सो वेयर वी प्रूव एवरीथिंग। हमारे पास हर चीज का कोई ना कोई सिद्धांत होता है, हर चीज का कोई ना कोई फॉर्मूला है, हर चीज साइंटिफिक है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेते। तो मैंने कहा कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होता है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होता है। हम इसे क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। कितने महीने आना चाहिए, हमें तो प्रूव करेंगे। यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं अपने स्टेटमेंट को। अगर आप बुक के फॉर्मूले की बात करें, बुक में फॉर्मूला गिवन है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस months left after last drawing
ये बुक में फॉर्मूला गिवन है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये हमने दो चीजें लिखी है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। इसको हम डिवाइड कर देंगे इसी चीज से, नंबर ऑफ आइटम्स से जो हमने लिखे, डिवाइड बाय 2। मैं लेमैन की लैंग्वेज, बहुत इजी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज, इसलिए मैं ऐसे टर्म यूज कर रहा हूँ कि आप समझ सके। अब अगर किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल को पहली बार पैसा विड्रॉ किया, 1 अप्रैल को पहली बार पैसा विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल में सपोज मैं डेट लिखता हूँ, लिखनी नहीं होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ईयर क्लोज होता है 31 मार्च में, ये लिखना नहीं होता, जस्ट टेलिंग यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ कर लिया, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, पूरे 12 महीने होते हैं, पूरे 12 महीने। ये तो हो गया फर्स्ट ड्राइंग। और लिखा है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार पैसा विड्रॉ कब किया, 31 मार्च को ईयर एंड होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसने आखिरी महीने के फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ किया था। हर महीने के फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ किया, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च। तो आखिरी बार 1 मार्च को विड्रॉ किया। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 1 महीना, डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले में है, इज इक्वल्स टू 13/2 इज इक्वल्स टू 6.5 months। आंसर कितना आया, 6.5 महीने। ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया था कि 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये आ गया, हमने लिख दिया 6.5 महीने। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पे 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मिडिल ऑफ ईच मंथ में 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, प्रूव करने का। नाउ वन मोर थिंग, एक और तरीका, अगर कोई व्यक्ति एंड ऑफ ईच मंथ में पैसा विड्रॉ करता है, दूसरा फॉर्मूला, एंड ऑफ ईच मंथ में पैसा विड्रॉ करता है, इस केस में पहली बार पैसा कब विड्रॉ किया होगा, जब 1 महीना गुजर चुका होगा, एंड ऑफ द मंथ आ गया होगा, यानी अप्रैल गुजर चुका, 30th अप्रैल, 30th अप्रैल, फिर 1 महीना गुजरा 31 मई, फिर 1 महीना गुजरा 30th जून। ये दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड हाउ टू प्रूव योर स्टेटमेंट। फिर आपका आ जाता है 31 जुलाई, 30-31 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, महीने का एंड है, 31 अगस्त, 30th सितंबर, 31 अक्टूबर, 30th नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28th फरवरी एंड 31 मार्च। अब ले लेते हैं महीनों के नाम, यहाँ आ गया अक्टूबर, फॉलोड बाय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये क्या हो गए आपके मंथ्स हो गए। ईयर कंप्लीट हो गया, अकाउंटिंग ईयर, वेट हैज गॉन। ये रहा कर्जा, इसमें वाइट आता है जो कि नजर नहीं आता है अक्सर। अब आप यहां पर देखिए कि 30th अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 11 मंथ्स। 31 मई से 31 मार्च तक 10 मंथ्स। 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने बाकी बचे। जितने महीने बचेंगे उतने महीने का इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पर 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स,
2 months, 1 month एंड 0 month। 31 मार्च को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन बचे? 0 month 0 days, इनका टोटल कर लेंगे। 11, 10, 21, 9, 30, 8, 38, 7, 45, 6, 51, 5, 56, 4, 60, 3, 63, 2, 65 और 1, 66। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, 66 मंथ्स। अब 66 मंथ्स को डिवाइड करिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ हैपनिंग्स, कितनी बार पैसा विड्रॉ किया, नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स, इससे डिवाइड कर दीजिए। 66 by 12 इज इक्वल्स टू 12 1 12, 12 5 60, पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, अगेन 60, 12 5 60, सो 5.5 मंथ्स और 5.5 मंथ्स। मंथ के एंड में पैसा विड्रॉ करेंगे तो क्या बताया था, 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब क्वार्टर का चेक करिए, क्वार्टर में कोई पैसा विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ऑलराइट। किसने विड्रॉ किया? 1 अप्रैल में, फिर विड्रॉ किया किसी व्यक्ति ने 1 जुलाई में, फॉलोड बाय 1 अक्टूबर एंड मोर ओवर 1 जनवरी। ये 4 बार पैसा विड्रॉ कर लिया, ऑलराइट। 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी, 4 हमारे क्वार्टर होते हैं। यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। दे आर 12 मंथ्स, क्योंकि पूरा साल बाकी है, तो साल शुरू हुआ है। फिर 3 महीने गुजर गए, जुलाई आ गया, अप्रैल मई जून 3 महीने गुजर गए, बाकी कितने बचे? 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स। फिर 3 महीने बाद कितने बचे? 6 मंथ्स। फिर 3 महीने गुजरे तो कितने बचे? 3 मंथ्स। इन सबका टोटल कर लीजिए, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 12 30, ये होगा 30 मंथ्स। इस टोटल 30 मंथ्स को डिवाइड कर दीजिए बाय द नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स, कितनी बार पैसा विड्रॉ किया, नंबर ऑफ हैपनिंग्स, 4 टाइम्स द अमाउंट हैड विथड्रॉन बाय द पार्टनर, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 4, 4 7 28, 20 पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 20, 4 5 20, 7.5 मंथ्स और 7.5 मंथ्स। कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में? पहले बताया था आपको, सो इट इज द सेम। आई होप नाउ देयर isn't any confusion or question। चलिए मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और चेक कर लेते हैं। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मिडिल क्या होता है? 1 जनवरी से 31 मार्च तक का एक क्वार्टर होता है। इसका मिड क्या हुआ? 15 फेब, पहली जनवरी, अगर साल शुरू हुआ 1 जनवरी में, अगर हमारा साल शुरू होता 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीने होते हैं पहला क्वार्टर, इसका मिड क्या होगा? 15th ऑफ मई। इधर आ जाइए, 15 मई लिखते हैं। दूसरा क्वार्टर जून के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर तक होता है, इनका मिड क्या होगा? 15 अगस्त, छुट्टी होती है, 16 अगस्त लिख देते हैं भाई, 15 अगस्त पे नेशनल हॉलीडे है, छुट्टी होती है। सितंबर उधर गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे 15 नवंबर आ जाएगी। इसके बाद फोर्थ क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, 15 फरवरी आ जाएगी। 15 अगस्त को आप छुट्टी करें ना करें वो आपका हेड है, मैंने 16 लिख दी है, मूविंग विद द सेफ साइड। ये 4 बार पैसा विड्रॉ किया, ठीक है, मिड ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। अब 15 मई से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी हैं? 1.5 महीना गुजर चुका, तो 10.5 महीने बाकी हैं, 10.5। 16 अगस्त से 8.5 महीने बाकी हैं, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7.5 महीने बाकी हैं, 7.5।
इसके बाद 4.5 महीने बाकी हैं, फिर 1.5 महीना बाकी है, ओनली फरवरी एंड मार्च। टोटल किया 10, 7, 17, 118, 4, 22 और 2, 24, ये हो गया 24 मंथ्स। अब 24 मंथ्स को डिवाइड कर लीजिए बाय 4 नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स। कितनी बार पैसा विड्रॉ किया? 4 बार, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 4, 4 6 24, कितने महीने आए? 6 मंथ्स। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दिस इज ओवर, थैंक यू, नाइस डे। कंटिन्यू करते रहिए क्लास। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल Expert Faculty Zone. If you have any problem and query, you can write us, mail us at a mailing address expert.facultyzone@gmail.com। हमारे चैनल को, एक्सपर्ट फैकल्टी जोन को आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिली मेंबर्स से भी सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को जहां भी आप कर सकते हैं फॉरवर्ड कीजिए। शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू एंड अ नाइस डे।